Hello students, now we are going to solve some numerical problems. So we take numerical problem from very short multiple choice question. So numerical problem is 7. MCQ 7. MCQ 7. क्या है इसमें कि देयर आर 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ आर रेजिस्टेंस, 5 रजिस्टर्स है, प्रत्येक का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इन विच 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, remaining 2 registers are connected in series. So what will be the equivalent resistance of this combination? So given here, suppose this is first register of R on, this is second which is also R, and next is capital R. These capacitors are connected in parallel. Remaining 2 resistors, this is R and next is another R connected in series. So what will be equivalent resistance between terminal A and B? इन सब की जगह एक ही रेजिस्टेंस हम लगाना चाहें तो कितने ओम का लगाएं? सो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस कॉम्बिनेशन या फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 upon Rp equal 1 upon 4 equivalent resistance of parallel combination 1 upon Rp equal 1 upon R1, 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R. So we can write 3 upon R. So Rp equal 3 by R by 3. R by 3. इसको हम चेंज कर देंगे. इन सब की जगह जो रेजिस्टेंस आया वो रेजिस्टेंस R/3 आया, और इन दोनों की जगह जो रेजिस्टेंस आएगा वो 2R आएगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में. तो फिर यहां हम लिख सकते हैं क्या, फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of series combination. So this will be Rs equal to R. But for equivalent resistance between A and B, so equivalent of a parallel combination, this is Rp which is equal to R by 3, Rp equal R by 3, and equivalent of series combination, this is equal to 2R. This is point A, this is point B, but both are in series. So equivalent resistance between A and B we can write as R equivalent equal R by 3 plus R by 3 plus 2R upon 1. This will be 7R by 3. 7R by 3. इस तरीके से ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7R by 3 आएगा. तो देयर इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बी. तो एक बार फिर से देख सकते हो, सेम 3 रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज पैरेलल में हैं, बाकी 2 सीरीज में हैं. तो पहले आप इनका इक्विवेलेंट निकालिए R/3, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालिए, दिस इज इक्वल टू R. फिर ये दोनों जो हैं आपस में किस में हो गए, सीरीज में दोनों ऐड हो जाएंगे. R1 प्लस R2 होता है, दिस इज इक्वल टू Rs. नाउ देन इक्विवेलेंट निकालेंगे तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो R/3 प्लस 2R/1. तो फिर ये आपके पास में 7R/3 आ जाएगा और ये A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया.
तो यू कैन नोट दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ MCQ 7. Now we take next numerical problem for short type question. तो for short type question में क्या है देखिए, so we take short question number 6. Short question. तो शॉर्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक रेजिस्टेंस है 8R ओम का और दिस इज 8R ओम रेजिस्टर. इसे हम सर्कुलर फॉर्म में ले लेते हैं. तो वी टेक इट इन सर्कुलर फॉर्म. क्लियर? ये 8 का रजिस्टर जो 8R का रजिस्टर है इसको सर्कुलर फॉर्म में हमने ले लिया. तो फिर करस्पॉन्डिंग टू डायमीटर इन पॉइंट्स A एंड B के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए. ठीक है, तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए. तो दिस इज 8R ohm resistor, but in this situation this part half part या semicircle, this half part means semicircle. So this half part will be half of 8R, so this is 4R. So this is 4R. Half lower half part also will be 4R, but total will be 8R. Now we can write equivalent circuit for this situation. This is 4R resistor, this is also 4R resistor. Clear? ये point A, this point is B, this is 4R, this is 4R, but both are in parallel. So what will be equivalent of parallel resistor? So if two resistors of R1 and R2 which are connected in parallel, then resultant can be written as multiplication of both resistors or divide by addition of both resistors, means R1 R2 upon R1 plus R2. So for equivalent we can also calculate by using formula 1 upon Rp equal 1 upon R1 plus 1 upon R2, but in short form we can write Rp equal R1 R2 upon R1 plus R2. So this is R1, this is R2. So equivalent of this combination. So what will be resultant? Multiply by these R equivalent. 4R into 4R. Divide by 4R plus 4R. Both are in parallel. So this will be 8R square upon 16R square upon 8R. R is cancel out. 8 2 ja 16. So result will be 2R. This is 2R. ये रेजिस्टेंस कितने का हुआ? 2R का हो गया. तो यदि किसी 8R ओम के रेजिस्टर्स को हम सर्कुलर फॉर्म दे दें तो उस केस में हाफ पोर्शन अपर एंड लोअर पार्ट में चले जाएंगे. तो दो रेजिस्टर्स जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमें दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का एडिशन कर दें तो वो उनका इक्विवेलेंट आ जाएगा. तो इस तरीके से हम इस शॉर्ट क्वेश्चन 6 को सोल्व कर सकते हैं. नाउ वी टेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो न्यूमेरिकल में से ही है. तो फर्स्ट हम ले रहे हैं
You can note it. Numerical problem first. There is a cylindrical, क्या कहता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट, देयर इज ए सिलेंड्रिकल रोड मेड अप ऑफ कॉपर whose length is 1 centimeter. क्लियर? तो लेंथ ऑफ कॉपर रोड, लेंथ ऑफ कॉपर रोड, दिस इज L इक्वल 1 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर. क्लियर? ये आपके पास में एक कॉपर रोड है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस स्मॉल r, दिस इज इक्वल टू 2 mm, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻³ मीटर. क्लियर? तो ये एक कॉपर रोड जिसकी रेडियस इतनी है, इसे एक ऐसे इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट किया जाता है या जिसका वोल्टेज जो है वो 120 वोल्ट है. तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रोड, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल 120 वोल्ट. क्लियर? नाउ resistivity of this copper rod, rho equal 1.7 into 10⁻⁻8 ohm मीटर. तो आपको बताना है कि करंट I कितनी फ्लो होगी, करंट I, ठीक है, कितनी करंट इसमें से फ्लो होगी, I आपको फाइंड आउट करना है. तो एक बार मैं फिर कह रहा हूं, जैसे ये कॉपर रोड है, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस जो है वो 2 mm है, इसके ऊपर 120 वोल्ट की बैटरी लगाएगी और इसकी रेजिस्टिविटी आपको गिवन है. तो आपको बताना यह है कि इस कॉपर रोड में से कितनी करंट फ्लो होगी, I निकालना है. तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है. तो सॉल्यूशन ले रहे हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ. हमें पता I इक्वल V अपॉन R, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. You can calculate current I by using this formula, but V is known, but resistance is not known. वो नहीं जानते हम कैपिटल R कितना है. इसका मतलब पहले इस R का उपाय करना पड़ेगा. क्या लिखें? रेजिस्टेंस R इक्वल रो L अपॉन A. क्लियर? रो इज नोन, L इज नोन, बट A क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट नोन. So what is A? We can write रो L upon pi R square. This is cross sectional area, R radius. This is second. अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई by using first and second. So what is I? I equal V upon value of R, rho L into pi R square. Clear? Now there are available all values V. This is R radius, rho resistivity, L length. Then you can put these values. I equal voltage V 120 multiply by pi 3.14 multiply by radius 1 into 10⁻⁻² whole square divide by rho. What is resistivity? Resistivity is 1.7 into 10⁻⁻8. What is length? This is equal to pi R square. Sorry, R की वैल्यू 2. What is L? Length 1 into 10⁻⁻8. These parameters are in SI units, so unit will be ampere. Now you can solve this mathematical step and you can find out value of current. So you have to calculate it. इस तरीके से हमारे पास में जो है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगी. ठीक है. तो I की वैल्यू
आपको कैलकुलेट करके फाइंड आउट करनी है। नाउ वी टेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। दिस इज सेकंड। What is second problem? There is a network of resistances. तो वो नेटवर्क क्या है? This is a resistor of 3 ohm between A and B. 3 ohm resistor. Now there are many resistors which are connected in this network. Three ohm, 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm. This is 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm. Clear? ये हमारे पास में जो है एक नेटवर्क है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इतने रजिस्टर लगाने की बजाय हम केवल सिंगल रेजिस्टेंस का यूज करें कि ए और बी के बीच में वो सिंगल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हम ए और बी के बीच में जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन लुक एट हियर दीज टू रेजिस्टर्स। यदि मैं इस वायर को स्ट्रेट कर दूं, then these resistors will be in series combination. इस वायर को मैं सीधा कर देता हूं तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इन दोनों का जो सीरीज है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? 6 ओम। तो फिर मैं इन दोनों की जगह 6 ओम लगा दूं, केवल एक सिंगल इक्विवेलेंट। तो फिर मैं इसको यहां से रिमूव करता हूं। आप ध्यान दे लीजिए 3 और 3 6 ओम दोनों सीरीज में है इस वायर को सीधा कर देने से। तो फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 6 लगा दूंगा। तो मैं यहां ये रिमूव कर देता हूं इसको, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने 6 ओम रेजिस्टर लगा दिया। 6 ओम। क्लियर? नाउ both two resistors 6 ohm 6 ohm which are in parallel with each other. देखिए ध्यान दें, ये दोनों पैरेलल में हैं, और जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में दोनों का एडिशन। 6 6 जा 36 अपॉन 6 प्लस 6 12 है, तो 36 डिवाइड बाय 12 है, दिस विल बी 3। तो इन दोनों की जगह मैं इनका इक्विवेलेंट 3 लिख सकता हूं। तो फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इन दोनों का मैं 3 लिख दूं, तो मैं ये मिटा देता हूं यहां से, और इन दोनों के बीच में 3 ओम को कनेक्ट कर देता हूं। तो ये 3 ओम। नाउ अगेन दीज टू रेजिस्टर्स विल बी इन सीरीज, क्योंकि वायर को सीधा ही करना है। तो सीरीज में है तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? 3 3 6। तो इक्विवेलेंट 6 ओम हो गया। तो फिर इन दोनों को हटा दूं, इन दोनों की जगह मैं एक ही लगा दूं। कितने ओम का? 6 ओम का। तो दिस विल बी 6 ओम। क्लियर? अगेन इन दोनों पे ध्यान दीजिए, बोथ आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में है, तो इन दोनों को हटा दिया जाए, और पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन, वही 3 6 6 जा 36 डिवाइड बाय 12 है। तो फिर दोनों की जगह मैं कितना लगा दूं? 3। तो मैंने इन दोनों को की जगह एक ही रजिस्टर लगा दिया, और दिस विल बी 3। अगेन 3 और 3 किसमें आ गए? ये आ गए फिर सीरीज में। तो फिर इन दोनों को हटा दूं,
और इन दोनों की जगह एक ही लगा दो, कितने का, 6 का, इन पॉइंट्स के बीच में। तो ये मैंने यहां से रिमूव किया और सिर्फ एक ही रजिस्टर लगा दिया, कितने का, ये लगा दिया मैंने कितने ओम का, ये 6 ओम का। अगेन दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। पैरेलल में आ गए तो फिर अगेन इन दोनों का रिजल्ट निकालें तो दोनों की मल्टीप्लाई वाई अपॉन में दोनों का एडिशन, फिर अगेन 3 आ जाएगा। तो फिर इन दोनों को हटा दूं और इन दोनों की जगह इन पॉइंट्स के बीच में केवल एक ही लगा दूं, कितना, दिस विल बी ऑफ 3 ओम। कितने का होगा, ये 3 ओम का होगा, 3 ओम। नेक्स्ट, अब यहां ये वायर मैं सीधा करता हूं तो ये अगेन 3 किस में आ गए, सीरीज में, सीरीज में आ गए। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये जो 3 लगे हुए थे, इन दोनों को ऐड करके एक ही लगा दूं। तो फिर ये इक्विवेलेंट हमारे पास कैसे बनेगा, ये तो हो गया ऊपर 6 ओम और ये हो गया जो है 3 ओम और ये टर्मिनल हो गए ए एंड बी। तो यू कैन लुक, दिस इज 6 ओम और दिस इज 3 ओम, बट बोथ आर इन पैरेलल। तो बोथ आर इन पैरेलल, तो पैरेलल का रिजल्ट कैसे निकालेंगे हम, सिंगल एक ही रेजिस्टेंस लगाएं। तो कितना आएगा, ये आएगा दोनों की मल्टीप्लाई, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल दोनों की मल्टीप्लाई और अपॉन में दोनों का एडिशन। तो 18 अपॉन में कितना हो गया, 9 और 9 2 जा 18, दिस विल बी 2 ओम। तो ये ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से हम इस पूरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको भी जो है नोट कर लीजिएगा। अब हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं और वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है नेक्स्ट, थर्ड। और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में की थी, सिमिलर वे में ये भी वैसे ही है। तो 3 पे आते हैं हम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3, there is a network of resistors, this point is A, this point is B, small r resistance, this is small r resistance, this is small r resistance. This network continues all resistors are of same extended, this circuit extended to infinity, we have to find out equivalent resistance between A and B। कि इतना बड़ा नेटवर्क हम नहीं लेकर के हम केवल एक रेजिस्टेंस ले लें तो वो कितने ओम का होगा, तो फिर हम उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालें इस इनफाइनाइट के लिए। क्लियर। Then we take 2 points, this is C or this is D, so we can terminate one chain, but after CD the network tends towards infinity। मैं इस CD के आगे की एक चैन कट कर दूं तो CD के आगे भी तो नेटवर्क कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक कम कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। और ए और बी के आगे नेटवर्क जो है वो भी कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो पहले तो मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मान लेता हूं मैं कि वो कैपिटल आर है। तो लेट क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, this is equal to capital R, but equivalent capacitance between C and T terminal, but equivalent resistance between C and D, this is equal to R।
वन चैन टर्मिनेट करने के बाद में भी ट्रेंड्स कहां तक कर रहा है, इन्फिनिटी तक, और ए और बी के बाद में भी कहां तक ट्रेंड्स कर रहा है, इन्फिनिटी तक। ये हमारी कंसिडरेशन है। चलिए हम यहां इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। दिस इज स्मॉल आर, दिस इज स्मॉल आर, ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, बट आफ्टर इट equivalent resistance capital R, so we can put between C and D, this is capital R, this terminal is C, this terminal is D. This is our consideration. Now both these resistors are in parallel, so what will be result for this? Now you can draw again equivalent. This is small r, A terminal, this is B terminal, but when two resistors are connected in parallel, then equivalent will be multiply both upon addition of both. So this will be, we can write as RR upon R plus capital R. ठीक, तो इन दोनों की जगह हम सिंगल लिख सकते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट ये है, इसका इक्विवेलेंट ये है। नेक्स्ट अगेन ये दोनों सीरीज में आ गई ए एंड बी के बीच में, तो फिर ए एंड बी के बीच में ये दोनों सीरीज में आ गए, तो इनका इक्विवेलेंट कैसे लिखें? तो ये ए, दिस इज बी, इन सीरीज दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो आर में ऐड कर दिया, आर आर अपॉन में आर प्लस आर। इसका मतलब ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट ये रेजिस्टेंस बना। लेकिन व्हाट इज आवर कंसिडरेशन? Consideration is equivalent resistance between A and B is capital R, or here this is, so we can say that this is equal to this. तो अब फिर तो our consideration हम कैसे लिख सकते हैं? But यहां मैं ऊपर इसका काम कर रहा हूं, but capital R equal, ये capital R equal ये R upon 1 plus R upon में R plus capital R. So LCM will be, ये आप नोट कर सकते हो, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से। So LCM will be R plus R square plus RR plus RR, R upon में 1, taking cross multiplication. So this will be RR plus R square equal R square plus 2RR. Clear? Now we shift R terms in this at this side. So R square 2RR इधर आएंगे तो माइनस के, तो माइनस का क्या रह जाएगा RR, R स्क्वायर इधर आएगा माइनस का R स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल 0। इसका मतलब हमने क्या कंसीडर किया था? कैपिटल आर जो है वो रेजिस्टर्स है ए एंड बी के बीच में, और आर हमें नोन है। स्मॉल आर तो आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन कैपिटल आर अननोन है। तो अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करें? तो फिर ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कैसे लिखते हैं? x इक्वल माइनस बी, दिस इज सिंधु मेथड, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बट हियर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? r को, r स्क्वायर को। b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस r को। a को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 1। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल R को। c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस R स्क्वायर को। तो ये आपके पास में वैल्यूज हो गई। x की जगह कौन? a की जगह 1, b की जगह r, और ये c की जगह माइनस R स्क्वायर। इफ वी पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, सो a इक्वल 1, b इक्वल माइनस R,
and C equal minus C square, then R equal minus plus R plus minus square root B square R square minus 4 into 1 into minus C square upon 2A 2 into में 1, लेकिन 4R स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर माइनस प्लस 5R स्क्वायर हो जाएगा, R इक्वल R प्लस माइनस रूट 5R स्क्वायर अपॉन में 2, बट वी कैन राइट R इक्वल R 1 प्लस माइनस रूट 5, क्योंकि R स्क्वायर बाहर निकलेगा, R कॉमन ले लेंगे अपॉन में 2, बट देयर कैन बी टू वैल्यूज, वन प्लस एंड अदर माइनस। तो फिर ये वैल्यू जो आपके पास में होंगी वो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये मैं इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से। तो R इक्वल, एक तो आ गई R इंटू में 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2, एंड सेकेंड आ गई R इक्वल R 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2, बट दिस वैल्यू नॉट बी पॉसिबल। तो फिर हमारे पास में आंसर क्या रहेगा, केवल यही रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही होता है। तो यू कैन नोट इट। तो ये आज का लेक्चर बस यहीं तक है। थैंक यू।